السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہوں اور گلے میں تھوڑی سی خراش ابھی بھی ہے، تو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیجئے گا۔ آپ لوگوں کو ناول کیسی لگ رہی ہے پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور کسی اور چیز کی دقت ہے تو وہ بھی مجھ سے شیئر کیجئے۔ آپ لوگ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں پلیز، مجھے اچھا لگے گا جان کر آپ لوگوں کے بارے میں۔ تو آج ہم ایک نیو ناول لے کر آئے ہیں، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے باہوں میں چلے آؤ صنم، اور رائٹر ہیں زارا زینب خان۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اصولاً دو وجوہات ہوتی ہیں جب ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی ایک طلاق شدہ خود سے تقریباً کم و بیش 11 سال بڑے مرد سے شادی کرتی ہے۔ مسز حاشر، نمبر 1 اگر لڑکا امیر ہو، اور نمبر 2 اب کی بار حاشر نے اس کے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور اس کے تاثرات کا جائزہ لے کر تلخ لہجے میں ہولے سے کہا، نمبر 2 راستہ کوئی اور ہوتا ہے مگر منزل کے طور پر کوئی اور سامنے آ جاتا ہے۔ ورشا کے چہرے کا رنگ ایک دم فک ہوا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کے معاملے میں کیا وجہ تھی؟ وجہ نمبر 1، مگر مجھے آپ لالچی نظر نہیں آتی، تو کیا وجہ نمبر 2؟ اس نے ورشا کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا۔ وہ ہولے ہولے سے کپکپا رہی تھی، گویا اس کی باتیں اسے ڈرا رہی ہوں۔ دیکھیں، آپ کی خاموشی کو میں اس بات سمجھوں گا، اس نے معمولی سے لہجے میں بائیں ابرو اچکا کر کہا، جیسے جواب کا منتظر ہو۔ ورشا سر مزید جھکا گئی۔ حاشر کا تمام خدشوں پر اس لڑکی نے سچ کی مہر لگا دی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ پہن لیجئے گا۔ وہ واش روم کی جانب چل دیا۔ اور ہاں، سو جائیے، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ رہی وارڈروب، کپڑے بدلنے۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ تو طے رہا ورشا، تمہاری قسمت میں محبت ہے ہی نہیں، تم کو محبت مل ہی نہیں سکتی۔ تم اتنی بے مول ہو کہ تمہارا شوہر شادی کی پہلی رات ہی تم سے ایسے سوالات پوچھ رہا ہے۔ لعنت ہو تم پر۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اٹھی اور وارڈروب کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو حاشر پورے بیڈ پر قبضہ جمائے نیند کی آگوش میں جا چکا تھا۔ ہاں بھائی، میں کون سا جہیز میں لائی ہوں بیڈ، یوں ہی پسر کر سوئیں گے یہ بیڈ پر، اور اب میں نعمانی اس 2 سیٹر صوفے پر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم میں گھسی اور منہ دھو کر باہر آئی۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ وہ خفگی بھری نگاہیں لے کر اس کو تکتی رہی اور پھر وارڈروب سے کمبل اٹھا کر جیسے تیسے صوفے پر لیٹ گئی۔ نیند کی دیوی جانے کب مہربان ہوئی اور وہ وادی خواب میں پہنچ گئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اگر لڑکا شادی شدہ ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اور پھر نہ ساس نہ نند کا جھنجھٹ، نہ کوئی اور ذمہ داری، نوکر چاکر کام کرتے ہیں، میں تو کہتی ہوں ہاں کر ڈالے اشرف صاحب، روز روز کہاں ملتے ہیں ایسے رشتے۔ سکینہ بیگم نے ہتھیلی پر سرسوں جماتے کہا، ارے بھلی مانس، ایسے کیسے بیاہ دوں اپنی اکلوتی بیٹی کو، اور پھر لوگ کیا کہیں گے کہ شادی شدہ لڑکے سے بیاہ دی بچی۔ اشرف صاحب نے رسانیت سے کہا، پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم اپنی بیٹی کو بھی آ رہے ہیں نا کہ لوگوں کی؟ پھر حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے کہاں جا رہے ہیں۔ آج تو اخراجات پورے ہو رہے ہیں، شادی بیاہ کی گنجائش ہے، پھر اگلے سال سرمت کی ڈاکٹری کی پڑھائی شروع ہو جائے گی اور لڑکی کی شادی طوالت کا شکار ہو جائے گی۔ اب ایسے میں ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے تو بسم اللہ کریں، باقی اللہ نگہبان ہے۔ سکینہ بیگم نے کہا، کہہ تو ٹھیک رہی ہو، میں ورشا بیٹی سے بات کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ ورشا کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا گئی تھی۔ سکینہ بیگم ورشا کی سوتیلی ماں تھی۔ کہنے کو تو انہوں نے ورشا پر کوئی ظلم نہ کیا، مگر کبھی ماں جیسا پیار دینے کی کوشش نہ کی۔ بس یہی کمی ہمیشہ ورشا کو پنپتی رہی۔ اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ سکینہ بیگم اسے 4 سال چھوٹے سرمت کی طرح اسے بھی ڈانٹ ڈپٹ کر کھانا کھلائیں، اسے پیار کرے، مگر اس کی یہ حسرت کبھی پوری نہ ہو سکی۔ گھر کے تمام کام ورشا اور سکینہ بیگم میں بٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی ورشا پر کوئی زور زبردستی نہ کی، ہمیشہ اس کی طرف سے چپ سادھے رہی۔ کبھی کبھار اسے پیار سے مخاطب کر لیتی تو اگلے 1 ماہ تک ورشا کا خمان نہ اترتا۔ ورشا 20 سال کی ہوئی تو سکینہ بیگم کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ آخر کو اگر کل کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو خواہ مخواہ لوگ انہیں ذمہ دار ٹھہراتے۔ ورشا تھے بھی تو انتہائی خوبصورت، سیاہ چمکدار آنکھیں، گلابی کھلتی ہوئی رنگت، تیکھی ناک جس میں ایک باریک سی سونے کی تار ہمہ وقت موجود ہوتی تھی، اور بھرے بھرے انابی لب۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی۔ اس کی سیاہ خمدار زلفیں کسی ساون کی کالی بدلی معلوم ہوتی تھی۔
वरिशा बिन्त अशरफ, आपका निकाह हाशिर वल्द सुलेमान से गवाहन की मौजूदगी में 1 लाख महर सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। वो अपने तमाम जुमले हुकूक उस शख्स के नाम कर चुकी थी जिसकी एक झलक भी अभी तक इसने नहीं देखी थी। रुखसती के वक्त वो बाबा और सरमद के गले लगकर फूट फूट कर रोई। उसने नम आंखों से सकीना बेगम की तरफ देखा जो दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी। इसके दिल में टीस सी उठी कि सकीना बेगम आगे बढ़ी और इसे गले लगाए, मगर वो ये हसरत दिल में लेकर वहां से रुखसत हुई। शहद रंग आंखें बेजारी से ये मंजर देख रही थी। अगली सुबह वो उठी तो सामने वॉल क्लॉक पर नजर पड़ते ही चौंक गई। दिन के 11 बज रहे थे। उफ, इसने सर पर हाथ मारा। सकीना अम्मी फजर के वक्त उठा देती थी, मगर यहाँ अब कौन उठाया करेगा? इसकी आंखें फिर से नम हो गई। आप भले से मुझसे मोहब्बत ना करें अम्मी, मगर मैं आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। उसने आंखों में आने वाले आंसुओं को पीछे धकेला। वो उठी और मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर गई। इतना बड़ा और खूबसूरत घर तो इसने अब तक बस फिल्म ड्रामे में ही देखा था। ये मेरा घर है? वो मुतहिर सी बोली। भाई, जब शौहर ही मेरा नहीं तो घर काहे को मेरा होगा? उसने खुद ही अपने आप को सर्जिंस की और अपने ही सर पर हल्की सी चिपत रसीद की। फिर कुछ सोचकर सीढ़ियां उतर गई। सामने से अधेड़ उम्र मुलाजमा आती दिखाई दी तो रुकी। अरे बीबी जी, उठ गई आप? साहब कहकर गए थे कि जब आप उठे तो नाश्ता बना दूं आपको। क्या खाएंगे आप? मुलाजमा ने शाइस्तगी से कहा। खाला, पहले ये बताए कि रात जो मेहमान थे वो कहाँ चले गए? निदरत भाभी जो इनके दोस्त की बीवी थी, सलमा आंटी, और अब ये खुद कहाँ गए? इसने हैरत से पूछा। अरे बीबी जी, वो तो सब मेहमान रात में ही चले गए थे। बड़ी बीबी यही है, नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही हैं। और साहब जी तो दफ्तर गए हैं, मुलाजमा ने जवाब दिया। अच्छा चले, मुझे सलमा आंटी के कमरे का बता दे और नाश्ता वहीं करूंगी। एक अदद हल्का सा सैंडविच ले आइएगा और कॉफी का बड़ा वाला मग। इसने मुस्कुरा कर कहा। जी बेहतर। वो सामने से दाएं हाथ जाए, कॉरिडोर के आगे पहला कमरा गेस्ट रूम है, वहीं रुकी है वो, मुलाजमा ने समझाया। अच्छा। वो मुस्कुराते हुए बढ़ गई। सलमा हाशिर की खाला थी और हाशिर की शादी उन्होंने करवाई थी। यानी तय है, जो मुझे मिलेगा मिलावट शुदा मिलेगा। मेरा किसी के खालिस जज्बात पर कोई हक नहीं। पहले अरसा और अब वो रिशा। अरसा वो औरत थी जिसके लिए मुझसे ज्यादा इसकी सोशल एक्टिविटीज, इसके मर्द दोस्त जरूरी थे। वो औरत थी जिसको बाबा ने अपने बिजनेस के सिलसिले में प्रॉफिट हासिल करने के लिए मुझ पर मुसल्लित कर दिया। एक डील थी अरसा। वो खटखट करता मुसलसल लैपटॉप पर टाइप करता जा रहा था। इसकी 3 साल रिफाकत में एक बार मुझे सुकून का नसीब ना हो सका, बल्कि रिफाकत एक गलत लफ्ज है। 3 साल अजाब, और अजाब में सुकून कहाँ होता है? एक मर्द के लिए इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि इसकी बीवी एक गैर मर्द की बाहों में झूल रही हो और वो सामने बेबस खड़ा देख रहा हो। वो मुसलसल टाइप करता जा रहा था। इसके जहन में अरसा के कहे गए तमाम अल्फाज गूंजने लगे। देखो हाशिर, मैं अमीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उमैर से बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। तुम और मैं दो अलग अलग किनारे हैं जो साथ चल तो सकेंगे मगर मिल नहीं पाएंगे। क्या फायदा इस लाजिल सफर का? तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो यकीनन। कोई भी औरत तुम्हारा साथ पाकर खुश नसीब कहलवा सकती है, मगर मैं नहीं। हम एक जैसे नहीं है हाशिर। जो चीजें तुम्हें गलत लगती है वो मेरा लाइफ स्टाइल है। छोड़ दो मुझे। अरसा मुख्तसर सी रेड कलर की सिलोलेस टॉप और जीन्स में मलबूस इसके सामने खड़ी थी। हाशिर को लगा कि इसका एक एक लफ्ज दुरुस्त है, और वैसे भी अब तक वो ये रिश्ता पापा के कहने पर निभा रहा था, मगर अंदर कहीं इसके दिल में भी यही सब पनप रहा था। वो खुद भी खत्म कर देना चाहता था इस बेफैज रिश्ते को। यूं बिना किसी लड़ाई और झगड़े के अरसा और हाशिर ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। बात यह नहीं कि ऐसे रिश्ते नापायदार होते हैं जहां हम आहंगी और बाहमी मुफाहमत ना हो, बल्कि रिश्ता तो तब कमजोर पड़ता है जब दोनों फरीकों में हम आहंगी पैदा करने की सलाहियत सिरे से ही मफकूद हो। ऐसे रिश्ते को आसानी से खत्म करना ही बेहतर है। हाशिर ने फिर भी कोशिश की थी कि वो अरसा को सही रास्ते पर ला सके, मगर बात यह थी कि अरसा इस गलत रास्ते की रंगीनियों में खो चुकी थी। वो सही रास्ते पर आना ही नहीं चाहती थी। वो 28 साल एक ना समझ औरत थी। उमूमन 17-18 बरस की उम्र में लड़कियों में गुमराह होने का मादा जोश पर होता है, मगर 28 साल पुख्ता जहन की मालिक औरत भी अक्सर वो बेशतर वही गलतियां कर बैठती है जो उसने 17-18 साल की उम्र में भी नहीं की होती। क्या कुछ नहीं था इसके पास? हर शय थी। शौहर, घर बार, पैसा, हर आसाइश। एक हलाल रिश्ते में मौजूद खुशी को वो महसूस करना ही नहीं चाहती थी। किसी गैर मर्द के बिस्तर की जीनत बनी औरतों को कौन मर्द बर्दाश्त करता है? इन्हें तो वही गैर मर्द भी हलाल रिश्ते के लिए कबूल नहीं करता जिसके लिए वो अपनी इज्जत लुटाती हैं।
हाशिर का ज़र्फ बहुत बड़ा था कि अपनी रातें घर से बाहर गुजारने वाली औरत को इसने 3 साल तक अपनी जिंदगी में शामिल रखा। इस औरत को जो घर से बाहर रात गुजारने को पार्टी का नाम देती थी, अब वो औरत जाते जाते हाशिर के दिल और बड़े ज़र्फ को निस्बतन छोटा कर गई थी। अब वो किसी ऐसे रिश्ते में बंधना चाहता तो था, मगर अंदर ही अंदर औरत का ये रूप इसके जहन में चिपक कर रह गया था। वरिशा, इसने जेरे लब नाम दोहराया और चेयर की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद गया। सुलेमान, हाशिर कब तक यूं ही तन्हा रहेगा? 5 साल हो गए इस तलाक को। इतना वक्त बहुत होता है। अब मेरे ख्याल से इसकी शादी कर ही लेनी चाहिए। सलमा बेगम ने अपने बहनोई सुलेमान साहब से कहा। सलमा आपा, मैंने एक दो बार संजीदगी से हाशिर को यह मामला समझाने की कोशिश की, मगर वो राजी नहीं है। वो कहता है कि अब इसके अंदर ऐसा कोई रिश्ता निभाने की गुंजाइश नहीं। सुलेमान साहब ने असल मुद्दा बयान किया। भाई, इसे समझना चाहिए। अब हर कोई लड़की अरसा तो नहीं होती ना। हाशिर की माँ होती तो वो ये काम खुद करती, मगर बहन के बाद हाशिर का घर बसाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर अरसा की दफा आपने जबरदस्ती ना की होती तो मैं ऐसी लड़की को अपने हाशिर की दुल्हन कभी न बनाती, मगर आपके लिए बेटे से ज्यादा बिजनेस डील जरूरी थी। न चाहते हुए भी सलमा बेगम का लहजा तल्ख हो गया। बस आपा, कभी कभी इंसान बहुत मुफाद परस्त हो जाता है। अरसा के बाप ने इस डील के लिए ढके छुपे लफ्जों में यही शर्त रखी थी, और इन दिनों बिजनेस की हालत बहुत खराब थी, सो मुझे यही बेहतर लगा। मगर अब सोचता हूँ कि मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इसे समझाना चाहूँ तो वो बात टाल देता है। एक दो बिजनेस पार्टनर्स की बच्चियां हैं मेरी नजर में। सुलेमान साहब ने चाय का मग मुंह से लगाया। रहने दे, अब ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। जिस क्लास की लड़की आपकी नजर में है वो अरसा से मुख्तलिफ नहीं होंगी। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि हम हाशिर की दुल्हन किसी मिडिल क्लास फैमिली से लाएं। ऐसी लड़कियां अमूमन शोहर की वफादार साबित होती है। सोहलिया की एक सहेली हुआ करती थी, सकीना। सलमा बेगम ने छोटी बहन का नाम लिया। इसकी बेटी है मेरी नजर में। क्या भला सा नाम है इसका? सलमा बेगम ने लम्हा भर को सोचा। हाँ, वरिशा। माशा अल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। सोले की छोटी बेटी अंसा की शादी में मुलाकात हुई थी। ग्रेजुएशन किया है बस। मासूम और भोली भाली सी बच्ची थी। और फिर सकीना इसकी सौतेली माँ है। तरबियत भी यकीनन सख्ती की होगी। मुझे तो इसे देखते ही अपने हाशिर का ख्याल आया। एन हाशिर के जोड़ की है शक्ल व सूरत से। ऐसी लड़कियां अच्छी बीवी और बहू साबित होती हैं। मैंने सोचा आपसे बात करके ये मामला तय करूं। वैसे भी मैं यहाँ बस मस्जिद एक माह के लिए हूँ। पाकिस्तान में सफेद पोश लोग हैं, जल्द निकाह करके रुखसत कर देंगे। सलमा बेगम ने पूरा लाया अमल तरतीब दिया। आपा, आपकी बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ, कोई एतराज भी नहीं। मगर हाशिर, सलमान साहब ने उलझे लहजे में कहा। आप फिक्र मत करें, मान जाएगा। खाला माँ हूँ उसकी मैं। नहीं खाला माँ, नहीं करनी मुझे शादी। आप तो सब जानती है ना? हाशिर ने झिंझिलाकर कहा। हाँ, सब जानती हूँ। भूल क्यों नहीं जाते सब? हाँ, और मेरी बात को जहन में बिठा लो। तुम्हारी शादी होगी तो हर हाल में होगी। फिर अगर वरिशा तुम्हें पसंद ना आई तो मैं कोई और लड़की ढूंढ लूंगी। तुम कोई टीनेजर नहीं जिसे एक एक बार 100 दफा समझानी पड़े। 33 बरस के हो गए हो। अब बस, सलमा बेगम ने गुस्से से कहा। खाला माँ, वो मुनमुनाया। बस, जो मैंने कह दिया था कह दिया। तुम्हारे बेड के साइड ड्रॉवर पर तस्वीर रखी है, देख लेना, सलमा बेगम ने कहा और बाहर चल दी। ये सही बात है भाई। 33 बरस के बच्चे और मर्द पर जबरदस्ती। ये सही बात है भाई। 33 बरस के बच्चे, ओ, मर्द पर जबरदस्ती। वो खफा खफा सा खुद से गोया हुआ। तस्वीर देखी है ना? नहीं, नहीं देखनी मैंने। वो बड़बड़ाया। मगर देखने में क्या हर्ज है? वो इसने अपने सर पर हौले से चिपत रसीद की और दराज पर पड़ा लिफाफा उठाया, खोला, मगर तस्वीर का रुख अपनी जानिब मोड़ने से पहले एक गहरा सा सांस लिया। वो यूं ही करता था। जब नेहात बेजारी में होता तो खुद को काम डाउन करने के लिए गहरा सांस लेता। इसने बेजारी से तस्वीर का रुख पलटा। लड़की थी या कोई अप्सरा? पल भर को वो फैसला न कर पाया। चेहरे पर एक दिल नशीन सी मुस्कुराहट जमाए, दोनों हाथों को थोड़ी तले जमाए, वो गालिबन किसी रोस्ट्रम पर चेहरा रखे हुए था। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस थी। चेहरे पर बेइंतहा मासूमियत लिए वो सीधा दिल में उतर रही थी। इसने होठों को सुकेड़ा। ओ माय गॉड, एकदम ये लफ्ज इसके लबों से फिसले। मगर ये मेरी किस्मत में कैसे हो सकती है? एक खूबसूरत पढ़ी लिखी का मोहरी लड़की जो न तलाक याफ्ता है न बेवा, वो मुझसे शादी क्यों करेगी? इस सोच का आना था कि इसकी सारी
उथल पुथल धड़कनें वापस मामूल पर आ गई। वो नहीं जानता था कि आमतौर पर दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की ज्यादातर लड़कियों को अपनी मर्जी कब होती है। वो तो अपने माँ बाप के हर फैसले पर खामोशी से सर झुका देती है, भले ही वो इस फैसले से खुश हो या ना हो। इनकार करने का हक वो खुद से छीन कर मसक कर देती है। इनके नजदीक अगर किसी शय की अहमियत होती है तो इनके बाप और भाई की इज्जत होती है। शादी बहुत सादगी से हुई थी, क्योंकि हाशिर कोई शोर शराबा नहीं चाहता था। वलीमे का फंक्शन भी निहायत सादगी से कर दिया गया था। क्या तोहफा दिया हाशिर बेटे ने तुमको? सलमा बेगम ने मुस्कुराकर पूछा, तो वरिशा ने जवाबन मुस्कुराकर अपना हाथ आगे कर दिया। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंगूठी है। सलमा बेगम ने बज़ाहिर खुश होकर कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हाशिर? सलमा बेगम ने दिल ही दिल में सोचा, हाशिर का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? सलमा बेगम ने इसके चेहरे को टटोलते हुए कहा, बहुत अच्छा आंटी। उसने नजरें चुराकर कहा, मेरी तरफ देखो वरिशा बेटी। सलमा बेगम ने थोड़ी से इसका चेहरा थामकर अपनी तरफ किया, तो वो आंसू जो वो अपने अंदर छुपाए बैठी थी फौरन से गालों को भिगोने लगे। वो बिल्कुल अच्छे नहीं आंटी। उन्होंने यूं ये रिंग बेड पर फेंकी और जलीकटी बातें की। वो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह नाक खफगी से सिकड़े रोने में मसरूफ हो गई। वरिशा मेरी बच्ची, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हाशिर ऐसे बदतमीजी करेगा। सलमा बेगम ने इसे खुद से लगाया। अच्छे से इलाज करूंगी मैं इसका, आ लेने दो जरा आज। मुझे कहते हैं कि मैं लालची हूँ, ये हूँ वो हूँ। जो मुंह में आ रहा था वो बोलती जा रही थी। वो ऐसी ही थी, सब कह देने वाली। राज रंगने नहीं आते थे इसे। मासूम सी 20 साल लड़की। इसे ये भी नहीं पता था कि हाशिर और इसके दरमियान हुई सब बातें सिर्फ इनकी अपनी थी और कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए थी। वो मुसलसल आंसू बहा रही थी। बस मेरी बच्ची बस, मैंने कहा ना कि मैं इसका अच्छे से इलाज करूंगी। मत रो तुम। 11 बज गए, आने वाले ही होगा। इसी वक्त दरवाजा खुला और हाशिर दाखिल हुआ। बेड के वस्त में बैठी वरिशा सलमा बेगम के कंधे से लगी सू सू करती आंसू बहाने में मसरूफ थी। इसने हैरत से भौवें सुकड़ी। क्या हो गया खालामा? इसने सलमा बेगम से कहा, जो बेड से उठते हुए खतरनाक तासुरात लिए इसी की तरफ बढ़ रही थी। तुम जरा मेरे कमरे में आओ। वो कहती हुई हाशिर के बाजू से निकलती हुई बाहर गई। हाशिर ने एक नजर वरिशा पर डाली, जो अब घबरा कर अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। उसने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाकर अपने सर की पुष्ट पर हल्की सी चिपत रसीद की। हाशिर ने मुतहिर सी निगाहों से इसे देखा। यूं अपने ही सर पर चिपत लगाने की आदत तो इसकी थी बचपन से। इसने मुझे ऐसा करते देख लिया होगा, इसलिए नकल उतार रही है। वो सोफे पर बैठकर बूट जराबे उतारने लगा। वो उठी और सोफे के साथ ही रखे ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और खुद को जेवरात से आजाद करने लगी। हाशिर अब सोफे पर नीम दराज मोबाइल पर लगा हुआ था, क्योंकि वो जानता था सलमा बेगम शदीद गुस्से की हालत में गई है। सो जब तक इनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, इसे इनके पास जाना नहीं था। वर्षा ने दुपट्टा पिनों से आजाद करके सोफे की साइड पर रखा और तमाम जेवरात पैक करके सेफ में रखने लगी। हाशिर अब इसकी कार्रवाइयों का जायजा ले रहा था। हाशिर के फोन पर रिंग हुई और वो टेरेस पर फोन सुनने चला गया। वर्षा ने इसे पीछे से मुंह चिढ़ाया। हूँ, ये भी ना हो सके कि रोने की वजह ही पूछ ले। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और शीशे के सामने खड़ी मैक रिमूवर से मेकअप साफ करने लगी। हाशिर वापिस आकर वहीं बैठ गया। जब मेकअप साफ कर चुकी तो दुपट्टे का ख्याल आया, जिसका कोना अब हाशिर के नीचे था। उसने एक नजर इसे देखा और हाथ बढ़ाकर दुपट्टा खींचा। हाशिर इसकी कार्रवाई से वाकिफ था, मगर टस से मस न हुआ, जैसे मोबाइल में मसरूफ होकर इर्द गिर्द को भूल गया हो। जाने किस नगोड़ी से मैसेज पर बात फरमा रहे हैं। वो आदतन बड़बड़ाई। आपने कुछ कहा? हाशिर ने चौंक कर इसे देखा। ना नहीं, वो मेरा दुपट्टा आपके नीचे है, वो दे दे। इसने सर पटाकर कहा। हल्के गुलाबी रंग के कामदार फ्रॉक में वो कोई हूरी तो लग रही थी। हाशिर ने एक भरपूर नजर इस पर डाली। वो दुपट्टा देने ही वाला था कि दुपट्टा पकड़ने के लिए एक कदम आती वरिशा अपने तमाम तर वजन के साथ तवाजुन खोती इस पर आ गिरी। उफ! हाशिर ने अपने सीने को मसलते हुए कहा। वो मुकम्मल तौर पर बौखला सी गई थी। बार बार उठने की कोशिश करती और इस कोशिश में मजीद इसके करीब हो जाती। हाशिर ने किसी फुसू के आलम में इसके चेहरे पर आती लटों को पीछे करता गोया हुआ। मोहतरमा वरिशा, ये कौन सा तरीका है दुपट्टा लेने का? हाँ, मैं तो वैसे भी देने ही वाला था, गिरने की क्या जरूरत थी? वो मुस्कुराहट दबाता हुआ गोया हुआ। वो वो मैं खुद नहीं गिरी, आपने गिराया। वो सख्त सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोली। मैंने गिराया? वो मासूमियत से बोला। चलो ठीक है, मैंने गिराया, अब नहीं उठने दूंगा। वो शरारती लहजे में बोला। देखे, शराफत का मुजाहरा करते हुए मुझे छोड़े और जाने दे, वरना वरना मैं इससे आगे बात ना बन पड़ी तो खामोश हो गई। वरना तुम क्या? वो इसकी नाक में मौजूद बारीक सी तार को अपनी शहादत की उंगली से नरमी से छूता हुआ बोला। मैं सलमा आंटी को आवाज दे दूंगी। वरिशा ने इसकी वारफ्तगियों से बचने के लिए मुंह इसी के सीने में छुपा लिया। कमरे में हाशिर का कहकहा गूंजा।
ले छोड़ देता हूँ, मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है किसी को पकड़ने का। वो इसे खुद से हटाता हुआ बोला। वरिशा का चेहरा मारे शर्म के सुर्ख पड़ चुका था, गोया लहू टपकने वाला हो। हाशिर ने दुपट्टा इसे पकड़ाया, जिसे थामकर वो भागते हुए वार्डरूम में बंद हो गई। हाशिर ने इसे अपने सर पर हौले से चिपट रसीद की और आंखें मूंद कर सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। क्या कर रहे हो हाशिर? वो लड़की अपने दिल में किसी और को बसाए हुए है और तुम इसे जबरदस्ती अपना बनाना चाहते हो। एक मनफी सोच इसके दिमाग में आई और दिल की हर धड़कन को मामूल पर ले आई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी नहीं है। इसने दिल को समझाया, मगर दिल सुन ही कब रहा था। वो किसी और से मोहब्बत करती है, दिमाग ने कहा, और दिल ने सर झुका दिया। उसने तासुब से सर झटका और सरमा बेगम के कमरे में चल दिया। तुमने वरिशा को अरसा की अंगूठी पहनाई जो वो यहीं छोड़कर गई थी? सलमा बेगम गुस्से से गोया हुई। मुझे नया तोहफा खरीदने का वक्त नहीं मिला, हाशिर ने नजरें चुरा कर कहा। वक्त नहीं मिला या खरीदना ही नहीं चाहते थे तुम पागल हो हाशिर? इतनी प्यारी और मासूम लड़की को अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुम्हारी जिंदगी में शामिल किया है, और तुम हो के नाशुक्री किए जा रहे हो। पछताओगे हाशिर। जिंदगी तो तुम्हें मौका दे रही है अपना घर बसाने का, मगर तुम खुद को ये मौका नहीं दे रहे। सलमा बेगम इंतहाई गैस और गजब का शिकार हुई। आपको क्या पता खाला अम्मा, वरिशा मासूम और प्यारी तो है, मगर मेरी नहीं है। किसी और के ख्वाब देखती है, वो किसी और को चाहती है। हाशिर दिल ही दिल में गोया हुआ। इसकी नजरों में वो मंजर घूम गया जब वरिशा सलमा बेगम के कंधे से लगी आंसू बहा रही थी। जरूर उसकी याद आ रही होगी। हाशिर ने सर झटका। अब जवाब दोगे या नहीं? सलमा बेगम ने पूछा। उसने क्या कहा है आपसे खाला माँ? वही वही कुछ जो तुमने उसे सुनाया, यानी अपनी तरफ से बातें बोल कर गई। हाशिर बड़बड़ाया। कुछ कहा तुमने? नहीं, वो मैं कह रहा था कि आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाशिर ने सरपटा कर कहा। मिलना भी नहीं चाहिए, सलमा बेगम बोली। अच्छा ना खाला माँ, आप गुस्सा थूक दे। वो सलमा बेगम से तो गुस्सा थूकने का कह रहा था, मगर अंदर ही अंदर इसे खुद को इस बात का गुस्सा आ रहा था, ये वरिशा को कोई मसला था तो वो इससे कहती। सलमा बेगम को शिकायतें लगाने की क्या जरूरत थी? वो बदगुमान हो रहा था। कैसा इंसान है, कल मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, और इतना कुछ कह गया, इंतजार भी नहीं किया कि मैं कुछ बोलूं, और आज? वो सोच कर रह गई। अपना कंबल उठाकर सोफे पर दराज हो गई, मगर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार सकीना अम्मी की याद आती, अशरफ साहब की याद आती, और कभी सरमत का मासूम चेहरा निगाहों में घूमने लगा। अशरफ साहब ने तो फोन पर खैरियत मालूम कर ली थी, मगर सकीना बेगम? जाने क्यों अम्मी का दिल इतना संगदिल है। मुझे इतने साल तक तो इंसान को पालतू जानवर से अंसियत हो जाती है, फिर मैं तो इंसान हूँ, सौतेली सही मगर बेटी तो हूँ ना। वो बेआवाज रोने लगी जब भी हाशिर कमरे में दाखिल हुआ। चेंज करने के बाद बेड पर दराज हो गया और कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। वरिशा के रोने की आवाज इसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थी। क्यों रो रही हो वरिशा? इसने कंबल से चेहरा निकालकर यूं ही लेटे लेटे पूछा। नसीब फूट गए मेरे, इसलिए रो रही हूँ। आपसे मतलब? बल्कि नहीं, अब नहीं फूटे, जिस दिन से पैदा हुई हूँ उसी दिन से फूटे हुए हैं। वो भराई हुई आवाज में बिना सोचे समझे बोली थी। हाँ तो नहीं करनी थी ना शादी, अब अगर इतनी याद आ रही है किसी की? वो मुंह बस और कर कहता फिर से कंबल में घुस गया। हाँ, वो क्यों रो रही थी और वो क्या समझ रहा था? भाड़ में जाएं आप। वो चिल्लाकर उठी और तकिया उठाकर इसकी तरफ फेंके। कंबल भी उठा फेंका। हाशिर उछलकर बेड से उठा और बार बार अपने बचाव के लिए चेहरे को बाजुओं की आड़ में छुपाता। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और जो चीज हाथ में आती जा रही थी वो उठाकर मारती जा रही थी। वरिशा रुको, सुनो तो। क्या हुआ? सॉरी, मैंने क्या कहा? मगर वो सुन कहाँ रही थी, बस चीजें पटकती जा रही थी। रात के 12 बज रहे थे। सलमा बेगम का कमरा नीचे था, वरना सब आवाजें आसानी इन तक पहुंच जाती। जब वरिशा थक गई तो दरवाजा खोलकर टेरिस पर चले गई। वो मुंडेर पर दोनों हाथ जमाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। आंखों में बेबसी के आंसू रवा थे। क्या हो क्या गया इस लड़की को? हाशिर ने बेड के नीचे से निकलते हुए कहा। वो 33 साल का मर्द था जिसे इस लड़की ने बुरी तरह पीट कर रख दिया था। माथे पर परफ्यूम की बोतल लगने से खून निकल रहा था। या वहशत, खाला माँ किस पागल खाने से उठाकर लाई है तुम्हें? हाशिर ने इसे कंधों से थामकर इसका रुख अपनी जानिब किया तो वो रो रही थी। उसका पूरा वजूद हिचकियों की जद में था। या खुदा, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। याद पिटाई तुमने की है मेरी, रो क्यों रही हो? हाशिर ने आहिस्ता से इसे अपने कंधे से लगाया। आप बहुत घटिया इंसान है, उसकी शर्ट की मुट्ठियों में भींचे हुए रोते हुए कह रही थी। अच्छा ठीक है, मैं हूँ। हाशिर ने मुस्कुराकर इसका सर सहलाया। बेहद, वरिशा ने कहा। हाँ बेहद। वो फिर से मुस्कुराए। आपने कल बहुत बुरी बातें की। आपने कहा मैं लालची हूँ, किसी और को, वो भराई हुई आवाज में बोली, मगर इससे आगे बोल न पाई। वो हैरान सा हुआ। अगर मैं खामोश थी, बोल नहीं पा रही थी तो आपको समझना चाहिए था ना। आपने मुझे गलत क्यों समझा? इसके आंसू मजीद रवानगी से बहने लगे। पागल हो तुम वरिशा, तुम क्यों किसी के भी प्रेशर में आकर ऐसे कह रही हो?
देखो मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, चंद दिन गुजर जाने दो, फिर हम बिना किसी लड़ाई झगड़े के रिश्ता खत्म। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वर्षा ने इसे खुद से अलग करके जोर से पीछे धक्का दिया और कमरे में जाकर टेरिस वाले दरवाजे को कुंडी लगा दी। मरे आप ठंड में, आपकी अकल और होश दोनों पट्टे चढ़ने गए हैं। वो फिर से चिल्लाई। पूरी रात दिसंबर की एक ठंडी सर्दी में गुजारने के ख्याल से इसे झुरझुरी आ गई। अच्छा सुनो तो, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, तुम ये दरवाजा खोलो, अंदर आने दो। हाशिर ने बेचारगी से कहा। नहीं, सुबह को आइएगा, आज तो मैं इस बड़े से बेड पर अकेली मजे से सोऊंगी। कल तो आप पूरे बेड पर फैल कर सो रहे थे, मुझे इस 2 सीटर सोफे पर लमक लमक कर सोना पड़ा। इसने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा मेरी माँ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, मगर इतनी ठंड में यहाँ? वो लज्जो का हद दर्जा बेचारगी समोकर बोला। माँ, हाँ माँ से याद आया, मैं तो अम्मी को याद करके रो रही थी। और आपने कहा? अस्तगफार, वाहियात सोचे आपकी। इसने जालीदार दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े हाशिर को देखकर कहा और दफातन चौंकी। हाशिर के सर से मुसलसल खून बह रहा था। इसने फौरन से दरवाजा खोला। आपने बताया क्यों नहीं आपको चोट लगी है? वो इसका हाथ थामकर इसे सोफे तक लाई और बिठाया। फर्स्ट एड बॉक्स किधर है? इसने परेशानी से पूछा। वो सामने वाले ड्रॉर में। हाशिर ने खफगी से मुंह मोड़कर कहा। वो फटाफट से बॉक्स लाई और इसके पास खड़ी होकर झुक के जख्म साफ करने लगी। कांच लगने की वजह से ऐसा हुआ था। सदशुक्र की जख्म मामूली सा था। वो निहायत दिलचस्पी से इसे देख रहा था। वो होठों को सुकेड़े रुई पर पायोडीन लगाकर जख्म को साफ करने में पूरी तरह महू थी। हाशिर ने आंखें मूंद ली और इस एहसास को महसूस करने लगा जो इसके इस तरह अपनी परवाह करने पर इसे महसूस हो रहा था। इसे याद आया जब 6 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था तो अरसा घड़ी भर को अस्पताल गई और फिर मसरूफियत का बहाना करके चली गई। भला शौहर से बढ़कर क्या मसरूफियत हो सकती थी? वो ना चाहते हुए भी अरसा और वरिशा को मुआवजा कर बैठा। जब वरिशा सनी प्लास्ट लगाने लगी तो इसको दर्द का एहसास हुआ, पता नहीं माथे पर या दिल में। आई एम सो सॉरी हाशिर, मैं तो नहीं हूँ, मैं ऐसी तो नहीं हूँ, मैंने यूं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई सरमद के अलावा। वो बेचारा भी ऐसे ही जख्मी होता था, मैं अपने हवास में नहीं थी, सॉरी। इसने हाथ बांधकर सामने खड़े होकर कहा। एड बॉक्स वो साइड पर रख चुकी थी। यहाँ बैठो। हाशिर ने इसका हाथ थामकर इसे अपने सामने बिठाया। तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं वरिशा, गलती मेरी थी, बल्कि मेरी भी नहीं थी। अरसा ने जो कुछ भी किया मेरे साथ, मैं अंदर से शदीद बदगुमान हो चुका था। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, यानी तुम्हारी तस्वीर देखी, तो शायद इसी वक्त तुम मेरे दिल को छू गई थी, मगर मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि तुम मेरी किस्मत में लिख दी गई हो। कल रात जो मैंने तुमसे जो भी पूछा वो इसलिए था क्योंकि मैं फिर से वही सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। और जो अभी कुछ देर पहले कहा, इसकी सजा तो मिल चुकी इस जख्म की सूरत में। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? वो मुस्कुराते हुए उससे माफी तलब कर रहा था। वरिशा ने अपने दाएं हाथ से इसके चेहरे के एक एक नक्श को छुआ। सुर्ख सफेद रंगत, शहद रंग आंखें जिनमें एक अलवही सी चमक थी, मगरूर इंतहाई तीखी नाक और हल्की हल्की बड़ी शेव में वो सीधा इसके दिल को छू रहा था। माफ किया, इसने मुस्कुराकर कहा और इसके कंधे से सर टिका लिया। हाशिर ने इसके सर पर अपने लब रख दिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है वरिशा? हाशिर ने यूं ही बेवजह पूछा। एक ही दिन में? अभी तो कल शादी हुई। मुझे नहीं पता, वरिशा ने हौले से कहा। मेरी भी तो कल ही शादी हुई, मुझे तो हो गई मोहब्बत, और आज ही हुई, इसने हैरानगी से बोला। वो मुंह पर हाथ रखकर अचानक हंसी। एक शेर याद आया है, आलिजा, कहें तो अर्ज करूं? वरिशा ने आंखों में शरारत लिए कहा। जी जरूर, हाशिर ने इसके बाल सहलाते कहा। वो हनोज इसके कंधे से सर टिकाए हुए थी। मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, वरिशा ने एक अदा से कहा। इकबाल, इस वक्त नहीं वरिशा, कोई गालिब का शेर सुनाओ, हाशिर ने झिंझलाकर इसके बाल बिगाड़ते कहा। पूरा सुन तो ले, वो नाराजगी से हुई। अच्छा अच्छा सुनाओ। मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, वरिशा ने सर उठाकर इसकी आंखों में शरारत से देखा। जो खाते पीते घरानों से है। शेर का मुकम्मल होने थे कि हाशिर का फलक शगाब का कहा बुलंद हुआ। कोई हाल नहीं तुम्हारा, वो हंसते हंसते बोला और इसके सर पर एक चिपत रसीद की। अच्छा है ना, मैंने बनाया। वो हंसते हुए गोया हुई। बहुत अच्छा है जनाब, कल अम्मी के यहाँ जाना है मुझे, आज बहुत याद आई इनकी। वो उदास होती हुई बोली। कल ले चलूंगा, हाशिर ने कहा। वादा? वरिशा ने कहा। हाँ बाबा वादा। हाशिर ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा और इसे करीब करके हौले से अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाने लगा। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। सकीना बेगम वरिशा को दिल से बेटी मानकर गले लगा चुकी थी। वरिशा और हाशिर की शादी को 2 बरस हो चुके थे। अल्लाह ने इन्हें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। हाशिर के दोस्त की शादी थी जिसमें जाने के लिए वरिशा आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। वो डल गोल्डन कलर का काम वाला सूट पहने हुए थी, इस पर हर रंग जचता था।
वो जो पहन लेती अच्छी ही लगती। चले? हाशिर ने वरीशा से पूछा जो खुद पर परफ्यूम का छिड़काव कर रही थी। हाँ चले। वो मुस्कुराते हुए बेबी कार्ड की तरफ बढ़ी और इसमें से 2 माह की अरिया को गोद में उठाया। वैसे कुछ सोच रहा हूं मैं। हाशिर ने इसके हाथ से अरिया को लेकर प्यार किया और वापस बेबी कार्ड में रखकर वरीशा को खुद से करीब किया। अभी तो देर हो रही थी आपको और अब आप शुरू हो गए, वो नाक सुकेड़कर बोली। देर? मैं सोच रहा हूँ अफक से मुआजरत कर लूं और शादी पर ना जाए। इसने इसके चेहरे पर आती लटों को पीछा करके इसकी पेशानी पर निहायत मोहब्बत से एक मेहर सुत की। जी नहीं, 1 घंटा लगाकर तैयार हुई हूँ, जाना तो हर हाल में है, वो इसे पीछे करते हुए बोली और अरिया को गोद में उठाया। क्या यार, वो झिल्लाकर बोला और फिर इसे चिढ़ा के अपना वही पसंदीदा गाना शुरू कर दिया। बाहों में चले आओ सनम, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये ये संग है उम्र भर का, कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिला करो हमसे। है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें क्या डर, क्या बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। खत्म शूट। तो प्यारे नाजरीन, बहुत ही अच्छा नॉवेल था ये, छोटा सा था और नसीहत आमोज भी था। हर नॉवेल में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती है। आई होप कि आप लोग भी इस नॉवेल से वो चीजें अखज कर पाओगे। और नॉवेल अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट नॉवेल के साथ में। अभी के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।